नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. I am working in Shri Baba Masnath Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Baba Masnath University, Astalbor, Rohtak, Haryana. Today I will discuss with you about interpretation of clinical lab tests. First of all, I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. आइए बात करते हैं हम क्लिनिकल लैब टेस्ट्स की. Clinical lab tests are various hematological and biochemical tests to help in diagnosis and treatment of disease or disorder. Clinical lab tests types. Three main types are there. One is the hematological test, that is the blood test. Second is urine test. Third is the stool test. Although there are n number of tests are there, but these three tests are most commonly used. To start with, hematological tests or blood tests. First is the RBC, that is the red blood corpuscles. So total RBC, if we see, the normal range for male is 4.5 to 6.5 million per cubic mm. For female it is 3.9 to 5.6 million per cubic mm. If the RBC count is more, it indicates chronic airway disease or polycythemia. If we talk of the morphology of RBC, the normal diameter is 7.2 micron. If the diameter is reduced, it may be due to iron deficiency anemia. If it is diameter is more, it may be due to, or it may be seen in the macrocytic anemia. If the shape is different or there is variation in shape, it may be due to pernicious anemia or thalassemia. Next is the HB or hemoglobin. Normal range for women is 11.5 to 16 gram per deciliter. For man it is 13.5 to 17 gram per deciliter. Hemoglobin level, if it is low, it indicates anemia. Next is the platelets. Normal range of platelet counts or thrombocytes are 1.5 to 4 lakhs per cubic mm. If the number of platelets are less, that indicates spontaneous bleeding is there. Small fall in the platelet count may be there due to some viral infection or pregnancy. If the platelet count increases, it indicates some inflammatory disease or malignancy. Coming to next, that is the white blood cells or leukocytes. The normal range is 4000 to 11,000 cells per cubic mm. So total leukocyte counts are done. If the total leukocyte counts are more, that is more than 11,000, it may indicates towards the some leukemia, serum sickness, or some myocardial infarction, or it may indicate tonsillitis, lung abscess, appendicitis, meningitis, like that. If there is a decrease in the number of leukocytes below 4000, again it indicates the bacterial infections like typhoid, viral infection like hepatitis, influenza, protozoal infections like malaria, or there may be aplastic anemia. Next is the differential white cells counts or DLC, that is the differential leukocyte count. White blood cells are you can say divided into 5 types like neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils. So there is you can say normal ranges are there. If the range varies, like neutrophils, if the count increases, it indicates urinary tract infection, pneumonia, tuberculosis. Next is lymphocytes. Lymphocytes, if the you can say number increases,
there may be some viral infection. Monocytes, the normal range varies in case of typhoid and bacterial endocarditis. Eosinophils, increase may be seen in the asthma or some parasitic infections. Then we have the basophils. Basophils increase is seen in the viral infections like hepatitis, chickenpox, or some malignancy may be there. Then erythrocyte sedimentation rate, ESR. Erythrocyte is red blood corpuscles, and the cells are settled down. The rate at which they settle down is the ESR. ESR is low in condition. Normal level is you can say 15, 0 to 15 or 0 to 20 in men and women respectively, as per the Western green method. ESR is low in conditions like sickle cell anemia, congestive heart failure. It is moderately raised in case of myocardial infarction, or some tumor may be there, tuberculosis or viral hepatitis. Then next is the under the clinical lab tests, hematological test, blood test, bleeding time. Bleeding time is the time that is required for the arrest of hemorrhage from the wound. अगर कहीं कट लगा है और वहाँ से जो ब्लीडिंग है वो कितनी देर में रुकती है, दैट इज द ब्लीडिंग टाइम. नॉर्मली इट इज 2 to 5 times. अगर ये ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, दैट इंडिकेट्स हीमोफीलिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. अगर कोई पेशेंट कोई पेन किलर ले रहा है या लाइक एस्पिरिन है या एंटीकोगुलेंट ले रहा है, तो उस केस में भी ये ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज द क्लॉटिंग टाइम. क्लॉटिंग टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आउटसाइड द बॉडी. अगर क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है तो इट मीन्स पेशेंट में बी सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया. नेक्स्ट इज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम. इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिट्रेटेड प्लाज्मा इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम की प्रेजेंस में कितनी देर में क्लॉट होता है, दैट इज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम. नॉर्मली इट इज 12 to 15 सेकेंड. अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम कम हो जाता है, दैट इंडिकेट्स कि जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी है पेशेंट की, दैट इज टुवर्ड्स द ब्लीडिंग जो है इंक्रीज टेंडेंसी है. देन वी हैव द ब्लड ग्लूकोज. इट इज द मोस्ट कॉमनली सीन. शुगर के टेस्टिंग के लिए, डायबिटीज की टेस्टिंग के लिए ये यूज करते हैं ब्लड ग्लूकोज. फास्टिंग का जो लेवल है दैट इज अराउंड यू कैन से 110 to 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. और अगर पीपी दैट इज खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद जब लेते हैं, दैट इज द पोस्ट प्रेंडियल. अगर वो 200 से ज़्यादा है जो है तो पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है. अगर वो 126 से ज़्यादा है तो उस केस में, और 200 से ज़्यादा है, खाली पेट 126 से ज़्यादा और खाना खाने के 2 घंटे के बाद 200 से ज़्यादा, दैट मीन्स इंडिकेट्स करता है कि डायबिटीज हो सकती है. नेक्स्ट इज द सीरम एंजाइम्स, CPK, दैट इज द क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज. इसकी नॉर्मल वैल्यू 175 यूनिट्स पर लीटर है. इसका जो लेवल है क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज या CPK का लेवल, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या शॉक में बढ़ जाता है. सेकंड है अपना SGOT. SGOT में S स्टैंड्स फॉर सीरम, G फॉर ग्लूटामिक, O फॉर ऑक्सैलोएसिटिक एंड T फॉर ट्रांसएमिनेस. SGOT लेवल है. नॉर्मल लेवल 35 यूनिट्स पर लीटर से कम होता है, और इसका जो है लेवल बढ़ जाता है इन केस ऑफ जॉन्डिस. मोस्ट कॉमनली जॉन्डिस है, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, उस केस में SGOT लेवल बढ़ जाता है.
SGPT इज द सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। इसका लेवल 60 यूनिट्स पर लीटर से कम होना चाहिए। अगेन इसका भी अगर SGPT का लेवल भी बढ़ता है तो दैट इंडिकेट्स कि लिवर सेल में डैमेज हो रखी है। देन ट्रोपोनिन्स ये इंडिकेट करते हैं, नॉर्मली इसका लेवल 0.1 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम होता है। अगर ये ज़्यादा है तो पेशेंट को जो है मायोकार्डियल डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट इज द ALP, दैट इज द एल्कलाइन फॉस्फेटेस। नॉर्मल रेंज जो है ALP की 35 to 130 यूनिट्स पर लीटर है। इसका जो लेवल है बड़ा होता है इन केस ऑफ रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, हेपेटाइटिस में बड़ा होता है, इसका लेवल जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में जो है एल्बुमिन इज द वन एंड द सीरम बिलिरुबिन इज द another test. Second, two tests are there for liver function test. एल्बुमिन जो है इज द प्रोटीन जो कि लिवर मैन्युफैक्चर करता है। एल्बुमिन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। अगर इसका लेवल कम हो जाता है दैट इंडिकेट्स एडिमा, हेमरेज, किडनी डैमेज हो सकती है, सोरियासिस हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर इसका लेवल ज़्यादा है तो इट मे बी ड्यू टू डिहाइड्रेशन और शॉक की वजह से हो सकता है। सीरम बिलिरुबिन जो बॉडी में हीमोग्लोबिन है वो डिग्रेड होने के बाद बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। बिलिरुबिन का अगर लेवल बढ़ जाता है तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। देन वी हैव द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम पोटाशियम। सोडियम पोटाशियम का जो लेवल है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल है हमारी बॉडी में, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो सीरम सोडियम है उसका नॉर्मल रेंज है 310 to 340 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हाई लेवल्स जो है वो दे आर सीन इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, हिपैटिक सिरोसिस और जो कुछ जो हार्मोन्स हैं उनका ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक चलती रहे तो उस वजह से हो सकता है। सोडियम का लेवल लो लेवल देखे जाते हैं इन केस ऑफ जैसे वॉमिटिंग है, डायरिया है, हीट स्ट्रोक है, डिहाइड्रेशन की वजह से कम हो जाता है लेवल। नेक्स्ट इज द सीरम पोटाशियम। जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 4 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मोर अगर इसका लेवल बढ़ जाता है दैट इज हाइपरकैलीमिया, दैट इंडिकेट्स रीनल फेल्यूर, शॉक की वजह से हो सकता है। और अगर इसका लेवल कम होता है दैट इज द हाइपोकैलीमिया, दैट में बी ड्यू टू वॉमिटिंग, डायरिया की वजह से हो सकता है, या कुछ डायूरेटिक्स लाइक थायजाइड है, लूप डायूरेटिक्स यूज करते हैं, उस वजह से भी बॉडी में पोटाशियम का लेवल कम हो जाता है। देन कमिंग टू रीनल फंक्शन टेस्ट, इसमें हमारा आता है सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल चेक करते हैं। जो सीरम क्रिएटिनिन है इसकी नॉर्मल रेंज है अपनी 0.5 to 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। It is used as a marker for the glomerular filtration rate. Then blood urea nitrogen normal range है अपनी 8 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डिक्रीज जो यूरिया लेवल्स हैं वो लिवर डिसीज और लो प्रोटीन इनटेक में देखे जाते हैं। नेक्स्ट जो है अपना हार्ट रेट है कार्डियक परफॉर्मेंस के लिए। हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। नॉर्मली जो हार्ट रेट है वो 60 to 90 बीट्स पर मिनट होता है, ऑन एन एवरेज अराउंड 70 to 75 पर मिनट होते हैं।
इसमें वेरिएशन हो सकता है, देयर में भी जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो हार्ट की फंक्शनिंग को डिनोट करते हैं. देन वी हैव द लिपिड प्रोफाइल. लिपिड प्रोफाइल, जो मेजर लिपिड्स हैं बॉडी में वो हैं कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, फॉस्फोलिपिड्स हैं. तो अकॉर्डिंगली जो लिपिड्स हैं वो दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन्स. और जो लिपिड प्रोफाइल में नॉर्मली चेक करते हैं वो चेक करते हैं अपना LDL, दैट इज द लो डेंसिटी lipoproteins, HDL high density lipoproteins, triglycerides and VLDL, that is very low density lipoproteins. तो इनकी जो रेंज है वो इंडिकेट करती है, जैसे LDL है वो उसका जो लेवल है वो नॉर्मल, इट इज अराउंड 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. टोटल कोलेस्ट्रॉल should be less than 200 milligram per deciliter. HDL should be less than 40. Then triglyceride less than 150 milligram per deciliter. VLDL up to 35 milligram per deciliter. So like that, ये जो इंडिकेशन है अगर ये बढ़ जाती हैं तो दैट मीन्स patient is maybe having or heading towards the coronary heart disease, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल plays a major role. Then coming to next, that is the urine test. यूरिन टेस्ट में जो ध्यान रखने वाली बात है कि फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन आफ्टर गेटिंग अप, लेकिन जो है जो पहला यूरिन जब स्टार्ट होता है उसको डिस्कार्ड करना होता है. उसके बाद मिडल पोर्शन जो है वो लेना होता है और उसमें कोई टच नहीं होना चाहिए. और यूरिन जो है उसकी जो एग्जामिनेशन है, क्वांटिटी, कलर, अपीयरेंस, ऑर्डर, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एल्बुमिन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, पिगमेंट्स एंड ब्लड जो है उसमें चेक किया जाता है. क्वांटिटी है, अगर ज़्यादा है क्वांटिटी, नॉर्मल क्वांटिटी इज़ 1 लीटर टू 1 से 1.5 लीटर के बीच में हेल्दी एडल्ट्स में एक दिन का जो आउटपुट होता है. अगर ये बढ़ जाता है दैट इंडिकेट्स डायबिटीज मेलाइटिस. देन अगर जो है डेली आउटपुट लेस देन 700 ml है तो कार्डियक फेल्यूर या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ इंडिकेट करता है. कलर नॉर्मली क्लियर या पेल येलो होता है. अगर ऑरेंज है तो इट मे बी ड्यू टू बिलिरुबिन की वजह से हो सकता है. रेड है तो ब्लड हो सकता है. देन अपीयरेंस नॉर्मली क्लियर होती है, मे बी स्लाइट टर्बिड और स्टैंडिंग. अगर क्लाउडी है दैट मे बी ड्यू टू पस सेल्स, आरबीसी और म्यूकस की वजह से हो सकता है. टर्बिडिटी है तो इट मे बी ड्यू टू यूरेट्स, फॉस्फेट्स की वजह से हो सकता है. ऑर्डर नॉर्मली एरोमेटिक होता है. अगर फ्रूटी या स्वीटिश है दैट मे बी ड्यू टू कीटोन बॉडीज. और प्यूट्रिड है दैट इज इट मे बी ड्यू टू पस सेल. पीएच जो है स्लाइटली एसिडिक होती है, लेकिन अगर एल्कलाइन है दैट मे बी एल्कलोसिस और यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स की वजह से हो सकता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली 1.01 से 1.025 तक होती है. अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है दैट इंडिकेट्स डायबिटीज मेलाइटिस. एल्बुमिन यूरिया हो सकता है. डिक्रीज हो जाती है तो डायबिटीज इंस्पिडस की तरफ करता है इंडिकेशन. कमिंग टू एल्बुमिन. एल्बुमिन अगर यूरिया में नॉर्मली एल्बुमिन प्रेजेंट होता है दैट इंडिकेट्स यू कैन से एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट. नेफ्राइटिस हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है. अगर ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज यूरिया है दैट इंडिकेट्स डायबिटीज मेलाइटिस. कीटोन बॉडीज है अगेन डायबिटीज मेलाइटिस. देन पिगमेंट्स लाइक बाइल सॉल्ट्स है, बिलिरुबिन है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की तरफ इंडिकेट करता है. हीमोग्लोबिन है, एक्सटेंसिव बर्न्स के केस में या पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है. मेलानिन है तो कोई
मेलानोटिक ट्यूमर हो सकता है। ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं, तो दैट इज इंडिकेट हिमेट्यूरिया। ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है, किडनी में स्टोन हो सकता है, लाइक दैट। सो दैट आर द यूरिन टेस्ट। फीसिस, स्टूल टेस्ट, इसमें कलर देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, म्यूकस देखते हैं, पस या ब्लड देखते हैं, या माइक्रोस्कोपी करते हैं वर्म्स की प्रेजेंस के लिए। नॉर्मली कलर जो है वो लाइट और डार्क ब्राउन होता है। अगर वो ग्रीन कलर है, दैट इज सीन इन द इन्फेंटाइल डायरिया। ग्रीन क्ले कलर का है तो ट्यूबरकुलोसिस की तरफ भी इंडिकेट करता है, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की तरफ इंडिकेट करता है। अगर फीसिस का कलर ब्राइट रेड है तो इट में बी ब्लीडिंग फ्रॉम द डिस्टल कोलन, पाइल्स हो सकती हैं, फिशर्स हो सकती हैं। ब्लैक है तो जीआई ब्लीडिंग, ट्यूबरकुलोसिस और मैलिग्नेंसी ऑफ लार्ज बाउल। ऑर्डर नॉर्मली ऑर्डरलेस या सम फाउल स्मेल होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फाउल है तो देर में भी एंट्राइटिस, एक्यूट एंट्राइटिस, रेक्टम या कोलन में मैलिग्नेंट अल्सर हो सकता है। म्यूकस है प्रेजेंट तो नॉर्मली स्मॉल होता है अमाउंट, और अगर ज़्यादा अमाउंट है तो कोई जो है इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे डाइसेंट्री है, एमीबियासिस है, कोलाइटिस है। पस या ब्लड है तो दैट में भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, या बैसिलरी डाइसेंट्री होती है। माइक्रोस्कोपी फॉर वर्म्स के लिए उसमें टेस्ट कर चेक करते हैं एग्स हैं या वर्म्स प्रेजेंट हैं, लाइक पैरासाइट्स, लाइक टेप वर्म है, अपना हुकवर्म है, पिनवर्म है, राउंड वर्म है, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका है, like that. These are tested. Microscopic examination is done. So that's all about the interpretation of clinical lab tests. My phone number and email ID is there. In case you want to clarify anything else, you feel free to contact me. In the end, I am once again thankful to my son, Mr. Ashish Sani, for typesetting and media recording of this presentation. So thank you very much for listening patiently to my presentation. Thank you very much once again, and good day. Best of luck.